So, good morning, everybody. Good morning to the very special Power Talk today with the Minister of MSME, Shipping, Highways, and Road Transport, Mr. Nitin Gadkari. He's one of the most known faces right now in the government of India after Mr. Modi and a couple of ministers. He's one of the top ministers, very knowledgeable person, result-oriented person. So now I would request Dr. Tyagi rather to start his presentation about the problems of the industry, and then we will take up other speakers one by one. And right at 12 p.m., Mr. Gadkari will join us. He's already there, but his cameras will start by 12 p.m. And we have already joined by with Mr. R.N. Dixit, सेक्रेटरी एमएसएमई। दीक्षित साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। जो स्पीकर्स हैं मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं ताकि हमारे ऑडियंस को भी मालूम पड़े कौन कौन हमारे साथ है। वी हैव मिस्टर वीके जैन, मिस्टर वीरेंद्र जैन, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स। वी हैव मिस्टर संजीव गुप्ता, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। वी हैव मिस्टर Chaitanya Mupalla, is one of the leading mithai manufacturer. We have Mr. Rajesh Gandhi, he is the president of Indian Ice Cream Manufacturers Association. We have Mr. Ashish Nahar, who is the joint secretary of Indian Ice Cream Manufacturers Association. We have Mr. Vikram Agarwal, secretary of Federation of Sweets and Namakin Manufacturers. We have Mr. Puneet Duggal, he is a leading packaging supplier to the industry, to the entire food industry. Mr. Viren Atpal from New Delhi. Mr. Shripad Chitle from Chitle Bandhu, Mithai Wale, and Mr. Manoj Paul from Heat and Control. He is the director of the company. It's an American company. He's the director of Asia and India. We also have Mr. KK Menon, managing director of MTS, Menon Technical Services, yet another very innovative company in India and one of the leading manufacturers of machineries in India. He's again a Make in India story like Mr. Manoj. So I will request Dr. Tyagi to start his words, and then we will take other speakers. Dr. Tyagi, over to you. Yeah. Good morning to Honorable Minister, Sir Nitin Gadkari ji, Secretary to Department Dixit ji, my colleague, ladies and gentlemen. I will start some of the questions which mainly food FMCG is facing. First of all, we are very thankful to Government of India and also Nitin Gadkari ji for Unlock 1 with effect from 1st June 2020. This had helped a lot of smooth running of industry. However, due to lockdown, maximum labor had migrated to their hometowns. We have been successfully to call some of the labor from them. However, some of the workers could not join us again due to the transport problem, resulting in loss of production and loss of the sale. We request the Honorable Minister, Sir, to increase the public transport, just like Indian Railway or buses, so that the worker can return to their work again at the earliest, and this will also help to increase employment in the country. So this is one of the major problem of the industry which they are facing till date. This every industry, this is not our industry, every food FMCG industry. Secondly, we as industrialists, we want to take the advice from the Honorable Minister. Can Indian entrepreneurs expect shifting of business from China to India due to anti-China emotion globally? Third problem is related to MSME sector. As we all know, MSME sector is under lot of stress because of the liquidity crunch and sudden shock of lockdown for the last 3 months. We are expecting V-shaped recovery in food FMCG company and U-shaped recovery in some of other business, just like a restaurant chain. Hence, we suggest the following benefits for every industry. Number 1, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, scheme of contributing at all 20% EPF should be extended for at least for 1 year. B, Pradhan Mantri Rozgar
Prosan Yojana should be extended at least for 3 years so that we can generate the more employment. Thirdly, the scheme of contribution of 4% scheme for employees of non-eligible companies should also be extended to 1 year. Finally, we are very thankful to Honorable Minister for providing this opportunity to us to speak here. Thank you, sir. Thank you so much. This is true that industry is really facing a big time problem related to labor. लेबर हमारी जा चुकी है, स्किल्ड लेबर हमारी जा चुकी है और काफी दिक्कतें इंडस्ट्री को आ रही हैं. So now I will request our Mr. Sanjeev Gupta to please present his thoughts about the Machinery Manufacturers Association and what exactly this the issues are in the COVID world and post-COVID world we are foreseeing. Mr. Gupta, over to you. आप अपने वाक्य को रखिए, please. Thank you, Firoz. For all, respected Shri Gadkari ji, Honorable Minister, Shri Dixit ji, Secretary, and all the fellow panelists. It's a great privilege to be a part of this and to have a direct conversation with all of you, especially Honorable Minister. We all know how practical Shri Gadkari ji is in his approach and is always interested how decisions can be fast-tracked, which could ultimately have benefit to the Indian economy in particular. I, Sanjeev Gupta, I represent the food processing machinery manufacturers. I'm the president of the association, also managing director of our company, Kanchan Metals, which makes food machinery totally developed indigenously. During this pandemic period, we have seen a lot of new situations, which in fact, Roji dekh rahe, even today, even every day we are seeing new situations. And this has given a lot of new potentials for this industry to cater to the food processing industry in terms of automation or in terms of new technologies. Now, as far as our segment is concerned, our segment of food machinery manufacturers, we really do not know we are governed by which department of government of India. We come under which department. So my humble submission will be that this sector should be put in under Ministry of Food Processing. We are directly related to the food processing sector, and all the government policies and all the government announcements for the food processing sector can also be applicable to our segment. Now, as we all know, food processing sector has been playing a very major role even during this pandemic situation in providing a big fillip to the revival of the Indian economy. Apart from the pharma sector, this is the only sector which I believe has been operating at good levels despite the challenges which my predecessor, Dr. Tyagi, mentioned. Despite that, this sector is doing very well and is aiding the economic revival. Now, this sector has a lot of dependence on the food processing machinery sector, which I represent, because now the situation is that more and more world-class technologies, high level of automation, and make the production of food products in a more hygienic, consistent quality manner, which is going to be more and more in demand. So for that, I feel that we should incentive processing technology, because it has got a very long period, which is not sustainable. If government help us in incentivizing the R&D, it would be a great effort. And at the time, the users, that is the food product manufacturers, if they can be incentivized for using the Make in India technologies in a manner
like they are able to get an accelerated rate of depreciation in the first year itself if they are using the Indian-made technology machines. It would give quite a boost to the Indian machinery manufacturers over the overseas one. Today, what is happening that Chinese-made machines, which are not that high-end technology, is quite disturbing the market in India. So my humble submission would be that some kind of restrictions, if it can be put on them. And one of the ideas could be that the customs duty on them is more than the GST on the local made Indian machines. This would also give a boost to the Indian made machines. Government can market the Indian machinery manufacturers, the database, more effectively in the world scene through its trade missions, through its embassies, so that more and more joint ventures can be invited into India by the world-class technology makers. And if some incentivization can be done by way of income tax holidays for such kind of joint ventures to give a more level playing field or a more attractive playing field than some of the countries in the South Asian region, I think India can attract world-class technologies in a much quicker manner, which would ultimately benefit the Indian food processing industry. And I am very confident that the growth of Indian food processing industry has a direct impact on the economy, because it connects right from the farming sector to the consuming sector. I don't think there is any other industry which has this direct connect. So these are my humble submissions, and thanks once again for allowing me to join in. Thank you, Mr. Gupta. Thank you for keeping your points. मुझे लगता है कि अपने आप में आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं कि अभी हमारा फूड प्रोसेसिंग मशीनरी सेक्टर जो है वो एक तरीके से लावारिस है और उसके ज़्यादा पूछने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ में बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ऑब्वियसली तो मैं आई विल टेक अपॉन टू मिस्टर मनोज पॉल. Good afternoon and respected Minister Gadkari ji and all my fellow panelists. It's a great opportunity to be here talking about the Indian food processing industry along with the fellow panelists. As you are all aware that COVID-19 situation has thrown up many new challenges in the industry, especially on the side of, social distancing, hygiene, HACCP. So these are issues that are thrown up many challenges. So my feeling is that one of the biggest solutions for these problems would be automation. Eaton Control is an American company, which was the founding company of automation in the food industry. We made the first potato chip line in the world, the first pellet line in the world, and even today, we are automating several sectors of the Indian food processing industry. Just to give you a few examples, we have automated today the complete namkeen industry. We have a namkeen line that can make 18 different varieties of namkeen. We have also automated products like Indian sweets. Just to give an example is gulab jamun. And we have also automated simple products, which is our Prime Minister's favorite, samosa. We have even made a fryer which can make over 6,000 samosa in an hour. So I think the food industry has a great potential. The potential can be unlocked only if it can be automated and produced in large volumes, and also in an automated way without much human intervention. The whole purpose of automation here is to avoid the intervention of human beings in the process or without touching. We have also come up with certain technologies like clean in place. Clean in place is a technology where the equipment can be cleaned without any person getting involved. We are able to clean with disinfectants or other caustic solution, so which are food grade, so that the machinery can be cleaned without people being involved. That is the big advantage. Automation
We have also extended beyond packaging. We have always been working on the packaging side. We are one of the leading packaging machine suppliers. Further, we have extended automation into the case packer side also. That means after the packaging of the food, putting them in cartons, and some other colleagues have even automated the process of storing them in the stores, retrieving them for dispatch, etc. Now, in this time, like Mr. Gupta ji told us that there is shortage of manpower. Also, Dr. Tyagi ji mentioned the same point, that there is severe shortage of labor, etc. I think automation is the solution. Now, yes, we have solutions, but how do we implement it in the companies? One of the key points I would say is that the government should encourage the food processing companies to invest in automation by providing some incentives and concessions. And one of the key points here would be the government should also encourage companies to set up manufacturing facility for these top-class machinery in India. Heat and Control, for example, has set up 2 manufacturing facilities, world-class, in Chennai and in Indore, investing over 150 crores, whereas many other companies are still trying to import the machinery. Going by the Make in India policy of the government of India, I would suggest that government should encourage companies that invest money by providing tax holidays or something like that. So far, we are yet to see any concessions for a company like ours, which has invested over 150 crores. So my request to the minister is to encourage food processing companies to invest in automation and encourage world-class companies like Heat and Control to invest in India by providing tax holidays or other concessions so that they can invest and bring the latest technology to the industry. Thank you very much for providing me an opportunity to speak in this excellent forum. Thank you. Yeah, thank you, Manoj. आपने बहुत अच्छा presentation दिया. You are very right. Menon साहब, what is your take on this? आप क्या मानते हैं? In a very quick note, if you can tell, what is the role of automation? Automation से क्या फायदा होगा food industry के लिए? Yeah, Honorable Minister Nitin Gadkari ji and Secretary Dikshit ji and my fellow panelists, thank everyone for giving me this opportunity to talk. Now, jumping straight to the topic, what Firoz had highlighted, we work on 3 verticals. One is peeling of food items, cutting of food items, and sorting of food items. Now, one of the areas where we found post-COVID, the situation which is changing dynamically is in the sorting area. We were earlier trying to promote machine learnings, and we were looking at object sortings and various other activities, which the industry was not really looking at seriously because there was the manpower to take care of that type of an operation. But today I find that in the last couple of months, we are getting lot inquiries where they're looking at artificial intelligence to be incorporated into the optical systems, which can take care of much of the human intervention, which was otherwise happening on the machines. Now, this is one area which we feel is a huge opportunity, but looking at the way we operate the industry in India, it's also a huge challenge. And for us to converting this challenge into an opportunity is where we have some of the hassles which we need to work on. We have this company, Tomra, which is one of the world leaders on sorting technology. We have invested huge money in India, putting up our own test labs. We have a lot of equipments here installed. The challenge that we face in India is the technology which works in the West need not necessarily work in India, and the machine is adapted to the Indian conditions, which requires a huge amount of money to be spent in terms of application development. And here is where I would like to put in my humble submission to the ministry. If they could do some sort of a help for us to make our investment on R&D to bring in these solutions, which is much more required by India today from the Western world, because it is not a straight cut and paste that you bring and implement it in India, because our Indian agricultural produce is pretty dynamic and the consistency of the input is always a challenge, except in a couple of areas like potatoes and other applications. So here is where we have a huge opportunity, and to convert that opportunity is an area where we would look at some sort of an help. But again, coming into manufacturing, we represent Vanmark, and we have a manufacturing facility 100% invested by our parent company from US.
Here we have started manufacturing. Today we are facing some challenges in terms of the vendor support which is coming in because of the COVID situation. That's where I will again try to lag on to the point what was made by Dr. Tyagi and Sanjeev Gupta, that we need to see how we are able to support these type of MSMEs, which is supporting us in terms of the manufacturing. So that's a major input that we are looking at. Here again, we have one more test lab, which we have invested into cutting technologies from FAM from Belgium. So to me, to conclude, I would look at some sort of a help coming in for research and development, for application development, to adapt the advanced technologies to support the Indian food processing industry in a post-COVID situation. Thank you once again. Yeah, thank you, Mr. Menon. आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे और ये बात सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कहाँ पे ये बॉटलनेक्स हैं जो इंडस्ट्री को नुकसान कर रही हैं, और वो बॉटलनेक्स को अगर हम क्लियर करें तो डेफिनेटली उससे हमें हमारी इंडस्ट्री को बहुत फायदा हो सकता है. So now over to you, Puneet. Can you please give your words? What is the your industry? What are the challenges faced by the packaging industry and the various other industries you are representing in India and having business into? Puneet, over to you. Yeah, good morning. I would first of all like to say thank you to Mr. Feroz, Honorable Nitin Gadkari Saab and Dikshit sir to give us an opportunity to present our problems. फिरोज भाई देखिए, हम लोग कुछ भी अगर काम करते हैं तो हम लोग आइसक्रीम इंडस्ट्री या नमकीन या फूड इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं. मुझे दो चैलेंजेस बहुत बड़े नजर आ रहे हैं आने वाले समय में. नंबर वन इज द लेबर. द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज अ वेरी बिग फैक्टर. सारे लेबरर्स अपने इस वक्त होम टाउन में जा चुके हैं, वापस आने के लिए उनको बहुत तकलीफ हो रही है. जैसा कि त्यागी साहब ने सबसे पहले बोला कि हम उन सब लोगों को किसी भी तरह मोबिलिटी दें और यहाँ पर पहुंचने के लिए साधन प्रदान करें. दूसरा सबसे बड़ा जो मुझे पॉइंट नजर आ रहा है कि देखिए, आज डीजल की प्राइसेस जो आज अगर मैं भी पैकेजिंग बना रहा हूं तो पावर और डीजल प्राइसेस में कोई कटौती नहीं है और डीजल तो रादर बढ़ता चला जा रहा है हर रोज. हमें कुछ ऐसा सर सपोर्ट मिलना चाहिए जिसमें कि डीजल प्राइसेस ना बढ़े, रादर रिड्यूस हो इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में, जो पूरे वर्ल्ड में आज तकरीबन सभी जगह रिड्यूस हुआ जा रहा है. एंड आई अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है इस वक्त वो डीजल ही है. सर इसको रिड्यूस करके रादर हम पेट्रोल को आप जितना भी इंक्रीज कीजिए शायद किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होने में, क्योंकि वो हम सबके लिए कहीं ना कहीं हाउस होल्ड में या अपने सेल्फ यूज के लिए यूज किया जाता है. डीजल सर हम लोगों को आज भी ट्रांसपोर्टेशन में हर तरफ तकलीफ आनी शुरू हो रही है. सारे ट्रांसपोर्टर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डीजल प्राइसेस ट्रांसपोर्ट प्राइसेस में इंक्रीज करेंगे. गवर्नमेंट को सर डीजल में कहीं ना कहीं जरूर रिडक्शन देनी चाहिए, फेयर रिडक्शन देनी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में आज प्राइसेस चल रही हैं, एंड रादर देन रिवर्स वो इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट टू इन दीज बैड टाइम्स. नंबर टू सर, हम लोगों को आज हर तरफ से जो है सपोर्ट की कमी हो रही है एमएसएमईज को. जो हम लोग जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, इस वजह से हम लोग सामने सर्विस नहीं कर पा रहे हैं दूसरी इंडस्ट्रीज को. तो कहीं ना कहीं सर हमें लेबर कॉस्ट के अंदर डेफिनेटली कुछ सब्सिडी दी जाए जो आज तक नहीं मिली है. हम लोगों को बैंक लोन्स के अंदर कोई सब्सिडी दी जाए. शायद गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सकती है कि जिस सेक्टर ने आज 50% या 60% से टर्नओवर कम करी है पिछले कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, उनको कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडीज दी जाए ताकि वो लोग अपने आप को सर्वाइव कर सकें. हो सकता है मेरे कुछ फ्रेंड्स इंडस्ट्री में ऐसे रहेंगे जो शायद 70-80% के ऊपर भी आ जाए, जो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, बट मोर और लेस हम लोग 25-30-35% के ऊपर है, विच इज अ हार्डकोर फैक्ट. और शायद सभी लोग इससे एग्री भी करेंगे कि यस, कोई भी इंडस्ट्री मुझे नहीं नजर आ रही सर जो आज 25-30-35% से ऊपर बिजनेस कर पा रही हो इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर. वेयरएज जैसे कि हमारी इंडस्ट्री हर साल 10 से 15-20% की नेचुरल ग्रोथ के ऊपर जाती है, हम सब लोग उसकी प्रिपरेशन करके बैठे हुए थे कि हम अगर 100 से इस बारी 130 तक जाएंगे, और जबकि सर हम रही 30% पे गए. तो सर कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके लिए जरूर कोई सपोर्ट मिले कि हम लोग उसको सर्वाइव कर सकें. सर इतने सालों में आज पिछले अगर हम फिगर भी लें 5 सालों में, आज हर एमएसएमई ने, हर लार्ज स्केल ने, सभी लोगों ने इतने टैक्सेस पे करे हैं. सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, सभी टैक्सेस गवर्नमेंट को पे किए जा रहे हैं. मगर आज इतने सालों में टैक्सेस पे करने के बाद भी हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है. आज कोई गवर्नमेंट सर ऐसी एवरेज निकाले जिसमें कि हमें ये मालूम चले कि पिछले इतने सालों में हमने जितने भी टैक्सेस जिसने जिस हिसाब से पे करे हैं सर, उस हिसाब से उसको कुछ तो सपोर्ट मिला जाए साथ में. एंड सर पावर इज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर अस. हमें सर आज गवर्नमेंट से जो
मैं हरियाणा में हूँ, हरियाणा में सर जो गवर्नमेंट ने टोटल जो हमें सब्सिडी दी है फिक्स चार्जेस का 25% छोड़ा है, विच इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट, और सर उसमें भी कुछ कैपिंग है। तो सर वो तो हमें मिला या ना मिला हमारे लिए बराबर है, इससे तो अच्छा हमें ना ही मिलता तो हम शायद बोलते कि साहब हमें कुछ नहीं मिला। मगर सर हमें फैसिलिटीज दी जाए ताकि हम अपने आप को स्टेबल कर सकें, खुद खड़े हो सकें और सर अपने कस्टमर्स को आगे सपोर्ट कर सकें। थैंक यू फिरोज भाई, दिस इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट नितिन सर, नितिन गडकरी साहब, अगर हमें इसमें कुछ सपोर्ट मिल सके, आई एम श्योर इट विल बी अ वेरी बिग सपोर्ट टू ऑल द इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग आवर पैकेजिंग इंडस्ट्री एज वेल। थैंक यू। या थैंक यू पुनीत, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे और सही है कि काफी चीजें उलझ चुकी हैं और कुछ चीजें पहले से उलझी हुई थी, तो उसके उसके परिणाम अब आ रहे हैं और बोलने के लिए आमंत्रित करेंगे। वीरेन नागपाल जी, ओवर टू यू। हमारे पुनीत जी ने ये बात बोली है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेबर है ना, लेबर यहाँ से पहले जा पाई थी और अब वो वापस आना भी चाह रही है तो वो आ नहीं पा रही। बिजनेस स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है आने वाला जो समय है वो डिजिटल मार्केटिंग का समय होगा। हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में आना पड़ेगा और उसके लिए पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैं ऑलरेडी ही एक पैकेजिंग यूज़ कर रहा हूँ जो पुनीत भाई ने मुझे दी है, वो अभी तक काम आती थी इसके आइसक्रीम्स के टब्स के लिए, और उस पैकेजिंग से मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, लोगों ने उसको बहुत सराहा भी है। और उसके अलावा मैं मैप भी यूज़ कर रहा हूँ, जो आने वाला समय जो है वो मैप का है। मैप टेक्नोलॉजी से एक कस्टमर को भरोसा होगा हमारे प्रोडक्ट्स पे और लाइफ पे, शेल्फ लाइफ पे भी। तो टाइम हमारा जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करने का है और उसके लिए गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे जीएसटी वगैरह को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, जो अभी ऑलरेडी मैप उसमें 18% चल रहा है, तो हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। फ्यूचर इज ब्राइट, मैं ये कहूँगा आगे आने वाला फ्यूचर ब्राइट है ज़रूर। मेरा नाम फिरोज नकवी है और मैं फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स का डायरेक्टर हूँ। आज गडकरी साहब हम लोग आपका बड़े नजरे आंखें बिछा के आपका वेट कर रहे थे और बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमें मौका दिया। और कल मेरी दीक्षित साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि कुछ हेल्थ चैलेंजेस बीच में रहे, लेकिन आपका एक जो आपका एक स्वभाव है कि आप सबके साथ जुड़ के और इतनी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड होगा। आई थिंक गडकरी साहब 250 मीटिंग्स इन दिनों में शायद या उससे ज्यादा मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये टाइम देने के लिए। हमारे साथ सर क्योंकि हमारी फेडरेशन है तो कई एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स यहाँ पे हैं। नमस्कार गडकरी जी, वीरेंद्र जैन दिल्ली से। नमस्कार। हाँ, अध्यक्ष FSNM, ये हमारी भारतवर्ष की संस्था है, फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स, सबसे बड़ी संस्था है जी। तो हम चाहेंगे, हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आफ्टर कोविड-19 के बाद जो हमें परेशानियां आ रही हैं हमारी इंडस्ट्री को, हमारे सप्लाई लाइन को, तो आप सुनेंगे, आप इसका कुछ समाधान हमें देंगे। आप हमें जो देंगे हम आपको दुगना करके सरकार को वापस देंगे, ये हमें उम्मीद है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं जी। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा गडकरी साहब से कि प्लीज आप अपना हमारी इंडस्ट्री को एड्रेस कीजिए। सर इस टाइम लगभग 15 देशों से हमें लोग देख रहे हैं। हमारे जो चाहने वाले हैं वो ज्यादातर UAE से, गल्फ से, यूरोपियन कंट्रीज से हमारे कुछ लोग हैं और स्पेशली भारत से कई हजार लोग इस वक्त हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके अपने पर्सनल चैनल पे भी ये लाइव हो रहा है, तो शायद नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे, ये तो हमें बाद में मालूम पड़ेगा कि कितने नंबर्स थे। लेकिन एक अच्छा मौका है, पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नजरें बिछाए बैठी है और उम्मीद कर रही है सरकार से कि कुछ हमें इस तरह की राहतें मिले सर, के हमारे लेबर के इश्यूज जो आ गए हैं इस टाइम, जो हमारे इंडस्ट्री में लॉकडाउन से रिलेटेड जो इश्यूज आ गए हैं वो हम उनका निवारण कर सकें। सर ओवर टू यू। मैंने अपने पॉइंट्स पहले ही आपको आपके थ्रू भेजे हुए हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अब ये मंच आपका है, उसके बाद फिर हम अपनी फरियाद लेके आपके पास आएंगे। उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको एक प्रकार से बधाई दूंगा। इतने कठिन स्थिति में आपने आपके काम को आगे ले जाने की कोशिश की है। जहाँ तक कोरोना वायरस के कारण
हमारे सभी सेक्टर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये बिल्कुल सच है कि पिछले अनेक दिनों से बिजनेस में काफी दिक्कतें और तकलीफें आई है, और इसके कारण स्वाभाविक रूप से आप सब लोग चिंतित भी हैं। पर ये मैं मानता हूं कि इसके पहले भी हमारे देश ने और समाज ने बहुत बड़े प्रमाण पर समस्याओं का सामना किया है। स्वाधीनता मिलने के पहले और स्वाधीनता मिलने के बाद में भी अलग अलग प्रकार की समस्याओं का हमने सामना किया है और हम उसमें यशस्वी हुए हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि हम सबको हमारे लोगों में जो भय है, डर है, फियर है, नेगेटिविटी है, इसको हटाना होगा और सबके मन में पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा करना होगा। जब तक पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा नहीं होगा तब तक इस दिक्कत से हमें सामना करने में कठिनाई होगी। दो प्रकार की बातें हमारे सामने अभी है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो कुछ समस्या है वो अपनी है, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो अपने आइटम्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके ग्राहक तक पहुंचाना, ये भी एक समस्या है। मुझे लगता है कि अभी लॉकडाउन है और भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने भी कोरोना के बारे में जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि मास्क का यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर का आते जाते उपयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से ज्यादा मेंटेन करना चाहिए, इसकी चिंता करते हुए हमें अपने बिजनेस को चलाना पड़ेगा। मैंने उसका एक अलग डेफिनेशन करके रखी है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के साथ जीने की जीवन पद्धति हमको विकसित करनी होगी। ये जब तक होगी जब तक हमें वैक्सीन हासिल नहीं होता। बहुत से वायरस जो आए हैं उसके ऊपर वैक्सीन मिला है, पर इसके ऊपर अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है। तो मेरा विश्वास है कि हम जल्दी ही, वर्ल्ड में इसके ऊपर जोरों से कोशिश चल रही है और वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा, और एक बार अगर वैक्सीन मिल जाएगा तो हम इस संकट से पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। और चाहे कोई आजकल 2-4 दिन के पहले कुछ मेडिसिन, कुछ कैप्सूल्स भी इसके लिए लॉन्च हुई है, पर वैक्सीन ये अल्टीमेट होगा और वो मुझे लगता है कि जल्दी हम उसमें सफल होंगे, और वैक्सीन अगर मिल जाएगा तो हमारी काफी दिक्कतें दूर होगी। इकोनॉमिक वार भी हमको करनी है। आपके इंडस्ट्री के बारे में एक सबसे बड़ी विशेषता ऐसी कि हमारे इंडस्ट्री की 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि काफी बड़ा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इंडस्ट्री ने दिया है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे किसानों के लिए विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के कारण, कहीं मिल्क इंडस्ट्री का, बाकी चीजों का भी काफी बड़े प्रमाण पर किसानों को भी एक प्रकार से इनडायरेक्ट फायदा मिलता है। ये हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा है, और लगातार रिसर्च के कारण हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी को लाकर अलग अलग प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस करके काफी बड़े प्रमाण पे हमने हमारे एक्सपोर्ट को भी अच्छी तरह से हासिल किया है। मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि ये एक फेज है, ये निकल जाएगी, और इसमें सभी स्टेक होल्डर अड़चन में हैं। कुछ राज्य सरकारों के पास अगले माह तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। भारत सरकार का भी रेवेन्यू पूरा ड्रॉप हुआ है। बैंकिंग सिस्टम भी स्ट्रेस के अंदर है, और इंडस्ट्री भी, हमारे माइग्रेंट लेबर भी सभी अड़चन में है। जो आपने मुझे कुछ बातें बताई है,
उसमें से विशेष रूप से इस समय वर्किंग कैपिटल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी ऑलरेडी हमने करीब 3 लाख करोड़ जो एमएसएमई में इस प्रकार के इंडस्ट्री आती है जिनका फिक्स एसेट टर्म लोन 25 करोड़ और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर 100 करोड़ तक है, उन सब लोगों को 20% कैपिटल विदाउट कोलैटरल देने के बारे में निर्णय किया है। हमने एमएसएमई की डेफिनेशन भी बदल दी है। बीच में एमएसएमई की जो व्याख्या थी वो काफी दिनों से लोगों की मांग थी, 14 सालों से। उसमें पहले क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस ऐसा था, उसको अब एक कर दिया है। जो माइक्रो में था इन्वेस्टमेंट 25 लाख वो अब 1 करोड़ कर दी है, और जो टर्नओवर 10 लाख था उसको 5 करोड़ किया है। जो स्मॉल में है इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ अभी किया है। पहले वो 5 करोड़ था इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 2 करोड़ था। जो मीडियम में है उसमें इन्वेस्टमेंट जो थी 10 करोड़ वो की है 50 करोड़, और टर्नओवर जो 5 करोड़ था वो किया है 250 करोड़, और इसमें एक्सपोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया है। तब एमएसएमई करके आपको निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। हमारी जो मंत्री है फूड एंड प्रोसेसिंग की, उनके साथ भी बात हुई है और उन्होंने उनके सेक्रेटरी और हमारे सेक्रेटरी मिलकर दोनों के स्कीम को इंटीग्रेटेड अप्रोच में कैसे लाए इसके बारे में हम लोग लगभग निर्णय हो जाएगा, हम लाएंगे, उसका भी फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें थोड़ा सा हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पावर कॉस्ट कम करने के पीछे ध्यान देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ क्वालिटी में काफी रिसर्च करके इनोवेशंस करके नए नए प्रोडक्ट्स जो है जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट हो सकते हैं उसको भी हमको तैयार करना होगा। एक बात जो प्रॉब्लम है, जो हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरीज है और सर्टिफाई करने वाले जो स्टैंडर्ड्स को सर्टिफाई करने वाले जो लेबोरेटरीज है, तो हिंदुस्तान की हमारी संस्था है और उनका वर्ल्ड की संस्थाओं के साथ कोलैबोरेशन हो जाए तो इस संस्था ने सर्टिफाई किया हुआ वो भी स्वीकार करे उस देश में। इसमें हम लोग कल ही प्रधानमंत्री जी के साथ एक मीटिंग हुई थी, तो आपके सेक्टर के भी इस प्रकार के जो अड़चने एक्सपोर्ट में आती होंगी तो जरूर बताइए, उसको हम लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे। पैकेजिंग सिस्टम भी नई नई आई है और उसमें भी काफी सुधार हुआ है। जो इंडस्ट्री विशेष रूप से सीजनेबल काम करती है, आइसक्रीम की इंडस्ट्री जैसे, अब उनका सीजन तो सब लॉकडाउन में चला गया, तो वो स्वाभाविक रूप से उनके सामने दिक्कतें और समस्या है ही। पर मुझे लगता है कि हम इसमें निश्चित रूप से सर्वाइव होंगे और इसमें काफी बड़े प्रमाण पर सरकार भी आपके साथ है। एक विशेष रूप से जो बात महत्वपूर्ण है वो टैक्सेशन की और इनकम टैक्स की है, जिसमें डिप्रिसिएशन नए इक्विपमेंट परचेस करने के बाद जो है वो ग्रेजुअली 25% से 15% तक आया, ऐसा आप लोगों ने सुझाया है। ये रेट के बारे में इंक्रीज करना चाहिए, ऐसा आपका सुझाव है, मैं जरूर कोशिश करूंगा। पैकेजिंग मशीनरी का जो सेक्टर है वो भी बहुत प्रॉमिसिंग है, पर इसमें एक्सपोर्ट के दृष्टि से हमें काफी बड़े जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स है उसका भी विचार करना पड़ेगा। हमारे पोर्ट की इफिशिएंसी काफी अच्छी हुई है, अभी वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से लगभग हम उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश हो रही है। हमारा जो पोर्ट का बिजनेस था 12 मेजर पोर्ट का, हमने लगभग दुगना किया है, तो उसमें और इफिशिएंसी आने में क्या क्या करना चाहिए ये भी हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं दूसरी बात, 2 बातें आपको सुझाऊंगा।
कि हमने एक फंड ऑफ फंड्स भी दिया हुआ है। उसमें जो एमएसएमई है इसमें है, जिनका टर्नओवर अच्छा है, जीएसटी का रिकॉर्ड अच्छा है, और उसके साथ साथ इनकम टैक्स का रिकॉर्ड अच्छा है, ऐसे एमएसएमई का हम सिंप्लीफाई मेथड से क्रेडिट रेटिंग करेंगे और उन एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंज में जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज ये हमारा नया कंसेप्ट है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज में ही एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज हो, और उसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि पहले हम उस एमएसएमई को 15% फंड ऑफ फंड से हम इक्विटी देंगे सरकार की ओर से, हमारी विभाग की ओर से, और फिर वो कैपिटल मार्केट में जाएंगे और पैसा रेज करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से कैपिटल मार्केट से जाने में आपको फिर आगे कैपिटल खड़ा करने में अड़चन नहीं जाएगी। तो ये पद्धति के आधार पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सब जगह जाकर आपको एमएसएमई में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी इसका उपयोग होगा। मैं 4-5 दिन पहले दुबई के इन्वेस्टर के साथ बात कर रहा था, फिर 2 दिन पहले करीब 10,000 इन्वेस्टर अमेरिका में थे, उनके साथ बात कर रहा था। तो मैंने सबको अनुरोध किया है कि आप इंडियन एमएसएमई में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि उनके यहाँ जो रिटर्न्स है वो बहुत कम है। अभी साउथ कोरिया में बैंक में डिपॉजिट करने के बाद ब्याज मिलता नहीं, देना पड़ता है। जापान में भी वही स्थिति है, और हमारे यहाँ 9%, 10% तक बैंक में देना पड़ता है ब्याज। तो स्वाभाविक रूप से रिटर्न हमारे यहाँ अच्छे हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इक्विटी खड़ी करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हम लाएंगे तो काफी बड़े प्रमाण पर आ सकती है, जिससे हमको एक्सपांशन करना आसान होगा। और ये तरीका जो है ये आगे बढ़ने के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ये जो फंड ऑफ फंड है, हमने 50,000 करोड़ इसके लिए रखा है, और इससे एमएसएमई को काफी ताकत मिलेगी। एक मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, हर इंडस्ट्री में आप इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और इसका उपयोग हमको काफी करना होगा। चाहे हमारे प्रोसेसिंग में, हमारे फॉर्मुलेशन में, हमारे पैकेजिंग में, हमारे फिनिश प्रोडक्ट में, अलग अलग प्रकार की टेस्ट को बनाने में उसका उपयोग होगा। अभी मैं आपको सुझाव दूंगा कि हमारे यहाँ नागपुर में ऑरेंज बर्फी बनाते थे सब लोग, और उसमें नेचुरल ऑरेंज जूस नहीं यूज कर रहे थे। तो मैंने मदर डेयरी को नागपुर लाया और उनको आग्रह से कहा कि आप यहाँ ये डेवलप करिए। अब उन्होंने ऑरेंज मावा बर्फी तैयार की है, वो 25% नेचुरल ऑरेंज जूस डालकर बनाते हैं। थोड़ा सा उसका टेस्ट अच्छा आया है। भी हमारे यहाँ वर्धा में बिस्किट बनते हैं गोरस पाक, वो विनोबा जी के समय उनकी प्रेरणा से शुरू हुआ था। तो गाय का दूध, गाय का घी और हनी से बनते हैं। अब हम हनी का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ा रहे हैं। तो अब शुगर के कारण भी, ज्यादा शुगर में लोगों में अवेयरनेस है, क्योंकि डायबिटीज के प्रमाण भी बहुत बढ़ रहा है। तो लोग अलग अलग नए नए इनोवेशंस चाहते हैं, और अलग अलग प्रकार के फूड भी चाहते हैं। आजकल फुटपाथ पर भी, स्ट्रीट फूड में काफी बड़े प्रमाण पर चाइनीज और अलग प्रकार के फूड लोग लाइन लगाकर खाते हैं। लोगों को भी नई नई टेस्ट चाहिए, और इसलिए लगातार जो लोग रिसर्च करते हैं, फॉर्मुलेशन बदलते रहते हैं, प्रोडक्ट बदलते रहते हैं, उनको भी एक अलग प्रकार का मार्केट भी मिलता है। और कंपटीशन होने के कारण स्वाभाविक रूप से अब गरीब आदमी का भी विचार करके करना पड़ेगा। मुंबई में, पूना में वड़ा पाव मिलता है, और आम गरीब आदमी वो सस्ता है, तुरंत लेता है, एक वड़ा होता है, एक पाव होता है, खा लेता है, पानी पीता है और चला जाता है। तो धीरे धीरे हमारे लोगों की आवश्यकता को ध्यान में लेते हुए हमको हमारे इंडस्ट्री को भी शेप देना पड़ेगा, और वेराइटीज
के प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी होगी। इंडियन मार्केट तो अच्छा ही है, पर मुझे लगता है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी बड़ा है। अभी दुबई में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में सभी स्टोर्स में हमारे फूड आइटम्स मिलते हैं और लोग काफी उसको पसंद भी करते हैं। और इसमें काफी राइज भी हो रहे हैं, लोग काफी बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोग भी जो छोटे छोटे गांव में जो दुकानें रहती है उसमें पैक फूड होगा, वेपर्स होंगे, चिवड़ा होगा, तो वो खरीदने के पीछे लोगों का भी, काफी लोगों का उनका भी सेल बहुत बड़ा है। तो ये देखते हुए हमको नए नए प्रोडक्ट्स को लाते समय हम कैसे उसको ला सकेंगे, ये तो आप ही लोग तय कर सकते हैं। पर इसका ब्रांडिंग भी आप लोगों ने आपका अच्छा किया है और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से भी एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छी प्रकार से हमारी फूड इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है। इसको और बढ़ावा देने के लिए पहली बात तो हमने ऑलरेडी की है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और एमएसएमई मिलकर स्कीम को इंटीग्रेट कैसे करें, और इस बार कोशिश कर रहे हैं कि रेटिंग करें लोगों का। जैसे जिसका रेटिंग अच्छा है उसको बैंक में 24 घंटे के अंदर लोन मिल जाए, जिसका जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है, इनकम टैक्स रिकॉर्ड अच्छा है, बैंक रिकॉर्ड अच्छा है, वो अप्लाई करे। तो ऐसी कोई सिस्टम इवॉल्व हो जाए, ऐसा कोई पोर्टल खड़ा हो जाए कि आप इतने सर्टिफिकेट भेज दिया आपने और उसको 24 घंटे के अंदर बैंक ने आपको सैंक्शन दे दिया। तो ये इस प्रकार का पेपरलेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, ये है। अभी आज जावड़ेकर साहब को भी कहा है कि सेल्फ असेसमेंट रखो, कोई लाइसेंस ही मत रखो। सेल्फ असेसमेंट करके बोलो कि अगर आपको फैक्ट्री डालनी है तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के लिए ये चिंता करनी है और आपको ही सर्टिफाई करना है आपको। पर आपने अगर गलती की और जानबूझकर अगर गड़बड़ करे तो फाइन बड़ा रख दो, ताकि कोई हिम्मत ही ना करे कि गलत काम करने की। काय के लिए इंस्पेक्टर चाहिए? तो धीरे धीरे हम लोग ऐसी सेल्फ असेसमेंट करके सेल्फ सर्टिफाई करने वाली सिस्टम, पेपरलेस ऑफिस, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, करप्शन फ्री सिस्टम, ये इंस्पेक्टर राज को खत्म करने में आप लोगों का भी सहयोग लगेगा। चल जाता है, ढकेल देना, आने के बाद उसको थोड़ा बहुत देकर हाथ पर अपने को इंस्पेक्टर को कटा देना, ये जो शॉर्टकट्स है इससे धंधा नहीं चल पाएगा। लॉन्ग टर्म पर हमको इसका प्लान करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये पीरियड थोड़ा सा कठिनाई का है, ये निकल जाएगा, हम इससे बाहर निकलेंगे। सरकार ने और भी काफी निर्णय किए। जो माइग्रेंट लेबर की बात हुई है, तो अभी जो लेबर आपको लाना है, तो अभी उस राज्य में और भारत सरकार ने भी उन लेबर को उनके गांव के लिए भी 50,000 करोड़ का भी पैकेज दिया है। अभी कल मैं देख रहा था बिहार में, वहाँ गांव में अभी अस्पताल बन रहा है, गांव में स्कूल बन रही है, अलग 25 योजनाएं हैं, ताकि जो लेबर गांव से शहरों की तरफ गया उसको वही काम मिला है। रहने के बजाय हम हमारे फैक्ट्री में भी कोई छोटे छोटे कोर्सेज तैयार करके उन लोगों को टेक्निकली उसको स्किल दे, कौशल्य सिखाए और उन लोगों को वही रोजगार दे। 6 महीने, साल भर वो अप्रेंटिसशिप में काम करे और बाद में जब उसको स्किल आ जाएगा तो वही काम करेगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। और इसमें जो लेबर कॉस्ट बाहर से आती है वो सस्ती होती है, क्योंकि वो पिछड़े हुए क्षेत्र से आती है, और हमारे यहाँ थोड़े लेबर रेट ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्थानिक लोगों को रोजगार देकर उनको ट्रेन करना ये ज्यादा अच्छा होगा। और इसके अलावा बल्क में जितना आ सकते लेबर तो आएंगे, तो उनके भी लिए सोचना होगा, क्योंकि जॉब भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। अब स्मार्ट विलेज भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अभी एग्रो एमएसएमई, विलेज इंडस्ट्री, इसका विस्तार करने की कोशिश कर रहा हूँ,
ताकि ये बड़े बड़े शहरों के बजाय छोटे छोटे गाँव में इंडस्ट्री खुले और उस इंडस्ट्री के कारण उस गांव में स्मार्ट सिटी जैसी होती है उससे स्मार्ट विलेज बने और वहाँ के लोगों के जो तनख्वाह मिलेगा उससे गांव की इकोनॉमी अच्छी होगी, वही छोटा स्कूल अस्पताल होगा और गांव अच्छा कैसे बने और गांव के लोगों को गांव में ही कैसे रोजगार मिले। तो ये सरकार का इसकी तरफ ज्यादा प्रायोरिटी है। तो मैं आपके इंडस्ट्री में भी चाहता हूं कि ये बहुत ग्रोथ होने वाली इंडस्ट्री है, इसकी काफी पोटेंशियल है और आप में से अनेक लोगों ने काफी अच्छा टर्नओवर भी बढ़ाया है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं। और इसमें बहुत चांसेस है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है और निश्चित रूप से इन सब अपॉर्चुनिटी का फायदा आपको लेना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को अभी आप सबको सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से आपको जितना सपोर्ट हम दे सकते हैं उतना देने की हम सब लोग कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि कोई निराश न हो, डरे नहीं, ये पीरियड निकल जाएगा और हम निश्चित रूप से जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई में भी हम यशस्वी होंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार सबके तरफ से जो भी हो सकता है वो निश्चित रूप से हम मदद करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई सवाल पूछने हैं तो पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा, आपने काफी अच्छे से गाइड किया हमें। और जो इंस्पेक्टर राज की सर आपने बात की है कम करने की, सर वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरत है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फूड सेफ्टी को लेके और कई ऐसे चीजों को लेके, पोल्यूशन कंट्रोल को लेके बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर इंस्पेक्टर राज कम होगा तो हम लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और हम लोग अपनी पूरी ताकत जो है वो इसको काम को बढ़ाने में लगा देंगे। तो दूसरी चीज आपने रेटिंग्स की बात करी सर, रेटिंग की बहुत अच्छा आइडिया है ये, इसको हम लोग मिलके कर सकते हैं। फेडरेशन अपने लेवल पे जो आपको मदद चाहिए होगी इसको करने के लिए हम करेंगे, हमें सिर्फ गाइडेंस चाहिए, बाकी आप हमें काम दीजिए, हम काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। उसके अलावा सर जो आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की है, हम लोग बहुत सीरियसली इसको प्लान कर रहे हैं। सिर्फ हमें हैंड होल्डिंग के लिए कोई मिनिस्ट्री चाहिए, अगर थोड़ा भी हमें उसमें फंडिंग और थोड़ी हेल्प मिले तो हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पूरे इंडिया में बना सकते हैं, जहाँ पे हम अपने कारीगर, अपने मिठाई बनाने वाले, अपने आइसक्रीम प्रोसेसिंग करने वाले, लड्डू बनाने वाले, तलने वाले, समोसा एक्सपर्ट, पराठा एक्सपर्ट हम बनाएंगे। अपने पास क्रैश कोर्सेज में 3-3, 4-4, 6-6 महीने में, और उन बच्चों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की गारंटी भी हम देंगे वहां पे कि अगर 500 का बैच निकल रहा है तो 500 के 500 लोग, 1000 का बैच निकल रहा है तो 1000 के 1000 लोगों को हम डायरेक्ट वहां पे एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये पूरा हमारा वादा है, लेकिन थोड़ा हमें सरकार की उसमें मदद चाहिए, हमें जगह चाहिए, कुछ ऐसे कुछ प्लॉट मिल जाए जहाँ पे हम ये कर सकें, और फाइनेंशियल हेल्प करनी होगी, हमारी इंडस्ट्री भी आगे आएगी जरूर, उसमें पीछे नहीं रहेंगे हम लोग। और सर जहाँ तक आपने एक्सपोर्ट की बात की है, सर एक्सपोर्ट में तो हम लोग ने वंडर्स किए हुए हैं, और अगर उसमें सरकार हमें हेल्प करेगी। सर एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमें, जैसे हमारी मिठाई नमकीन इंडस्ट्री है, ये एक भारत की, जैसे आप बकलावा की बात करेंगे तो सीधा टर्की का दिमाग में आता है, अगर आप चॉकलेट की बात करेंगे तो सीधा स्विट्जरलैंड का तस्वीर सामने आती है। तो क्यों ना मिठाई और नमकीन को हम पूरी दुनिया में प्रमोट करें। भारत सरकार हमें एक ऐसा बोर्ड बना के दे, क्वायर बोर्ड, कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड की तर्ज पे मिठाई नमकीन बोर्ड बना दीजिए, हमें टारगेट दीजिए। आज हमारी टर्नओवर 1 लाख करोड़ की है, आप बोलिए, और टारगेट दीजिए 1.25 लाख करोड़ कब होगा फिरोज, हम आपको सर टारगेट ओरिएंटेड काम करके देंगे और उसमें हम बिल्कुल पूरी तरह से लग जाएंगे। और सर सबसे मजे की बात यह है कि 95% मैन्युफैक्चरर्स एमएसएमई को बिलोंग करते हैं, 95% हमारे वेंडर्स और हमारी जो मशीनरी सप्लायर्स हैं सब एमएसएमई को बिलोंग करते हैं। तो इसमें बहुत बहुत अच्छा काम करने की पूरी स्कोप है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब पहेलियां बन गई हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, और मैं बहुत 2-4 ज्यादा मिनट अब आपके नहीं लूंगा मैं, मुझे मालूम है कि आपको आगे भी जाना होगा। मैं 1-2 हमारे जो पैनलिस्ट हैं मैं उनसे कहूंगा वो पॉइंट्स को आपको बताएं। आपको भी अचरज होगा कि सरकार से ऐसी भूल कैसे हो सकती है, या ऐसा कैसे ये ऐसा हो गया। ओवर टू यू राजेश गांधी जी। राजेश गांधी जी जो है प्रेसिडेंट है इंडियन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के, और ये इंडस्ट्री सर आपको मालूम है 100 दिन काम करती है और 365 दिन अपने 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 बिजनेस को चलाती है, अपने लेबर को पैसा देती है। अब ये 100 दिन हमारे चले गए, पूरी गर्मी इसमें निकल गई, अब अगले जो 365 दिन प्लस जो बाकी 6 महीने बचे हम कैसे सर्वाइव करेंगे। राजेश जी आप अपने पॉइंट को बहुत क्विकली रखिए, फिर मैं आशीष जी को लूंगा और 2-3 पॉइंट्स को हम लेके सर का आधा टाइम नहीं लेना चाहते। राजेश गांधी जी, ओवर टू यू। Sir, thank you very much for giving us an opportunity to hear this
एंड वेरी नाइस प्रेजेंटेशन सर। सर आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है कि आइसक्रीम सीजनल इंडस्ट्री है और उसका प्रॉफिट सीजन में ही होता है, बाकी के पीरियड में नुकसान ही होता है, और जो भी ये सीजन में कमाते हैं वही उससे ही हमारा बैंक पेमेंट या कोई भी पेमेंट होता है, तो उसी से हमारा इंडस्ट्री चलता है। तो अभी हमारा एक फंडामेंटल इश्यू ये है कि इसकी वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस आइसक्रीम इंडस्ट्री की सब कंपनियों को, छोटी बड़ी सब कंपनियों को ये दिक्कतें हो चुकी है। तो हमारा एक रिक्वेस्ट सर ये है कि ये जो भी पेमेंट है टिल नेक्स्ट सीजन, दैट इज मई जून तक, अगर पूरा इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट जो भी है उसका टर्म लोन या कॉर्पोरेट लोन में कन्वर्ट किया जाए, तभी ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी, नहीं तो इसमें से 50 से 60% कंपनियां बंद हो जाएगी। तो मतलब हम ग्रांट नहीं मांगते रहे, खाली बोल रहे हैं कि जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना है बैंक को उसको 1 साल का टाइम दिया जाए, जिसकी वजह से वो लोग अगले सीजन में जो कमाएंगे उसमें से पेमेंट करेंगे। सो पहला एक मुद्दा ये है कि लिक्विडिटी वाला इश्यू है। सर दूसरा हमारा एक बड़ा पॉइंट चल रहा है कि इसको डेयरी इंडस्ट्री के साथ लिंक करना चाहिए आइसक्रीम इंडस्ट्री को, बिकॉज टेक्निकली भी इसमें 50% टोटल सॉलिड डेयरी के है, तो इसकी वजह से आइसक्रीम इंडस्ट्री को हर बार लग्जरी गिना जाता है। तो एक हमारा एक रिक्वेस्ट है कि इसको आइसक्रीम को डेयरी इंडस्ट्री गिना जाना चाहिए। तीसरा रिक्वेस्ट एक है सर कि फिक्स चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी के बहुत मतलब लग चुके हैं लोगों को, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसका फिक्स चार्ज जो सीजन में लगे हैं जहाँ पे फैक्ट्री काम नहीं कर चुकी है और लोगों को पैसा देना पड़ा है, तो राज्यों को इंस्ट्रक्शन दिया जाए या कुछ ऐसा कुछ सेंट्रल और स्टेट को मिलके के जैसी फिक्स चार्ज इंडस्ट्री को नहीं देना पड़े। और चौथा चीज ये है सर कि कई चीजें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग या किसी की स्कीम्स चालू है तो उसमें टाइमलाइन एक्सटेंशन देना चाहिए, बिकॉज अभी ये लॉकडाउन की वजह से कोई उसमें स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले चुके हैं, तो ये सब बेनिफिट एक्सटेंड करना चाहिए। जो भी स्कीम्स चलती है उसको टाइम लिमिट देना चाहिए। सर कई लोगों का बैंकिंग का आप लोगों का 1 जून का सर्कुलर है, तो उसके बारे में मतलब बैंक्स बोलते हैं कि अभी तक हमारे वो सर्कुलर नहीं पहुंचे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट आपके डिपार्टमेंट को कि बैंक को बताया जाए कि भी हमने सर्कुलर जारी की है, तो इसको आप मतलब सही तरीके से कस्टमर को बेनिफिट दीजिए। सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ पेशेंट हियरिंग। एक मैं आपको सुझाव दूंगा, आपका तो बात बराबर कि 1 साल तक ये रिशेड्यूलमेंट हो जाए, रिस्ट्रक्चर हो जाए कि 1 साल तक कोई नहीं दे, बाद में ये 1 साल बढ़ा दे, 10 का 11 करे, 11 का 12 करे, तो मैं जरूर करूंगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको कहनी है कि हमने एक चैंपियन करके हमारा वेब पोर्टल खोला है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ये जहां जहां सरकार ने जो पैकेज जाहिर किया है इसमें आपको दिक्कतें आ रही, बैंक इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, सहयोग नहीं कर रही, तो आपका ग्रीवेंसेस इस वेब पोर्टल पर आप भेज दीजिए। अभी तक 50,000 लोगों के प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व कर दिया, तो हमें ये ध्यान में आएगा कि कहाँ क्या गड़बड़ है, तो आप इस पोर्टल पर आपकी बात भेज दीजिए, हम आपको पूरी तरह मदद करेंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। और ये पोर्टल का मॉनिटरिंग मैं खुद करता हूँ और निश्चित रूप से उसके द्वारा कोई जानकारी ऐसी होती है तो निश्चित हमें भी समझ में आएगा। मैं फाइनेंस मिनिस्टर को उसके बारे में भेजता हूँ, ये जरूर भेजिए, आपकी दोनों बातें मैं जरूर याद रखूंगा। सर ये और है, आप सुनेंगे तो शायद एक ऐसा है कि अभी वर्ल्ड मार्केट में मिल्क पाउडर का भाव ऑस्ट्रेलिया में 180 रुपए किलो है और हिंदुस्तान में मिल्क पाउडर का भाव मेरे को लगता है 280 होगा। पर वर्ल्ड में ऐसा हो गया कि इंटरनेशनल प्राइस, अभी शुगर की प्राइस जो है, जो आप यूज करते हो ना, आप ये भी समझ लीजिए कि सरकार में कितनी दिक्कत होती है। अभी शुगर की इंटरनेशनल प्राइस है 22 रुपए किलो और अभी हमने शुगर केन के जो किसान है उसके लिए अभी इस बार वो बढ़ाकर किए 34 रुपए किलो मिनिमम। अब स्वाभाविक रूप से आप देखिए कि 6,000 करोड़ शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए हम दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से क्या है कि एक एक चीज को करते करते सरकार के सामने भी अनेक समस्या है। बीच में ऐसा एक प्रश्न आया था कि जो शुगर का कमर्शियल यूज करते हैं और कंज्यूमर जो चाय के बनाते घर पे,
तो इसके लिए कोई अलग रेट रखे करके, क्योंकि क्या होता है कि अभी जैसे मिल्क पाउडर का भाव कम हुआ या शुगर का भाव कम हुआ, तो मेरे नज़र में कभी दिखने में ये नहीं आता कि मिठाई के भाव कम हुए या आइसक्रीम का रेट कम हुआ। और आज क्या हो गया कि ये प्राइसेस भी बहुत फ्लक्चुएट होती है। आपने एक बार जो बढ़ा दिए तो कभी तो नीचे आती नहीं वो। खैर, ये पूछना नहीं चाहिए कि मार्जिन क्या होती है। अभी मैं एक ऐसी वेबिनार में था, तो अब आप 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो वेबिनार में मैंने राजीव बजाज, जो बजाज के एमडी है, उनको पूछा कि डॉलर की तुलना में रुपया फ्लक्चुएट हुआ तो तुम अड़चन वगैरह की बातें सब बताइए, मैंने सुनी, अब मुझे बताओ तुम्हारा फायदा कितना हुआ। तो वो एकदम शांत हो गए। तो उसने कहा कि मेरा 8%, वो 50% स्कूटर एक्सपोर्ट करते हैं, तो 8% उनका फायदा बढ़ा एकदम। अब आप 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं और डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर हुआ, तो अभी 78 या 77 रुपए पे अगर रुपया है $1 पे, तो आपका एक्सपोर्ट में कितना फायदा हुआ जो करने वाले हैं। थोड़ा सा एक बात ऐसा है कि कभी ना कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है। एक तरफ इंपोर्ट करने वाले का नुकसान होता है, फायदा होता है। अच्छा, ये इंडस्ट्री में आप क्या कभी रेट एक बार बढ़ता है तो डाउन होता ही नहीं, कभी होता है कभी? नहीं सर, नहीं होता है, वो तो सही है, लेकिन सर हम ही हैं जो 5 रुपए की आइसक्रीम भी खिला रहे हैं सर। आज भी 5 रुपए में चाय भी नहीं मिल रही इंडिया में, और 5 रुपए का बिस्किट, 5 रुपए की आइसक्रीम की फूड इंडस्ट्री आज भी खिला रही है। 5 रुपए का नमकीन का पैकेट भी आता है हमारा। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो, एक सवाल कभी पूछना नहीं चाहिए कि किसी फिल्म एक्ट्रेस को उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, किसी अखबार वाले को उसका टोटल सेल नहीं पूछना चाहिए, और किसी मैन्युफैक्चरर को उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं पूछनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा जानता हूँ आइसक्रीम में हवा का वजन कितना होता है और कॉस्टिंग कितना होता है, 1 लीटर में कितना किलो आइसक्रीम होता है। तो ये अगर ये आपके जो आइसक्रीम एसोसिएशन वाले हैं ना, उनको पूछो कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, बताइए बोलना। सर बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है सुन के कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन है। मतलब ये एक बिल्कुल सलाम करने योग्य बात है कि आपने। लेकिन सर एक और मुद्दा है आइसक्रीम का। एक बात ये भी है, अभी जैसे पार्ले बिस्किट बनाता है, तो उन्होंने अपनी प्राइस इतनी फिक्स रखी है कि उनके देश भर में प्लांट है, पर वो वही गेहूं, वही शक्कर, वही है, और वही के स्टैंडर्ड से वो करते हैं, और रेट भी उन्होंने लगभग फिक्स रखा हुआ है, तो उनका सेल भी बहुत बड़ा है। तो मैं ये मानता हूँ बिजनेस है, सब लोग कमाने के लिए है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरूर सरकार की ओर से ये बातें करेंगे। हाँ, और बताइए। एक मुद्दा और है सर आइसक्रीम का, अगर आप सुनेंगे तो शायद आप भी शायद हंसेंगे इस बात पे। आशीष भाई अपना वो पॉइंट रखिए प्लीज कंपोजिशन का। सर सर्वप्रथम आपलं खूप खूप स्वागत या वेबिनार मध्ये। सर आपने जो एमएसएमई का इंडस्ट्री का चार्ज लेने के बाद जो उसमें एक नई गति और दिशा दी है, उसके लिए सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सर मैं 1-2 प्रश्न आपके सामने आइसक्रीम इंडस्ट्री से रिलेटेड रखना चाहूँगा कि आइसक्रीम ये डेयरी प्रोडक्ट से बनता है, जैसे दूध है, मिल्क पाउडर है, क्रीम है, इससे बनता है। पर जो जीएसटी के कंप्लायंसेस है या जीएसटी का टैरिफ है, ये आइसक्रीम के लिए ही 18% रखा हुआ है, और बाकी सभी डेयरी प्रोडक्ट के लिए 5% या 12% में इसका स्लैब आता है। और जैसे एक फिरोज भाई ने अभी कहा कि सबसे मज़ेदार बात सर, आपने भी सुनी होगी कि नहीं, आइसक्रीम के बारे में मालूम नहीं है, एक जीएसटी काउंसिल ने एक कंपोजिशन स्कीम निकाली थी, या अभी चल रही है वो, कि जो छोटे उद्योग है 1.5 करोड़ के बीच के, उनके लिए 1% टैक्स भी आप भरो तो उसमें आप कंपोजिशन स्कीम में आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। पर इसमें से 3 चीज़ें सर उसमें से एग्जेम्प्ट की गई या डिलीट की गई। तो उसमें एक टोबैको, सेकंड इज पान मसाला, और आप तीसरी जो आइटम है उसमें वो है आइसक्रीम। तो सर ये आज तक हम लोगों को ये पजल सुलझा हुआ नहीं है। और दूसरी एक बात आपको यहाँ पर रोशनी डालना चाहूँगा कि सर आपके जो एमएसएमई के डेफिनेशंस आपने जो नए दिए हैं वो सही में स्वागतार्ह ऐसी बात है, पर जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है आज बैंकों के स्तरों पर, तो जो पिछले स्लैब में एमएसएमई इंडस्ट्री में बैठते थे और जो अभी नई डेफिनेशंस आई है,
तो बैंक ये समझा रही है उद्योगों को कि अभी तक हमारे पास नए डेफिनेशंस आए नहीं है, तो वो 20% कोलेटरल के लिए भी एक उद्योगों को वो दिक्कतें आ रही है। तो इसमें सर आप थोड़ा रोशनी डालेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पॉइंट आपने समझा कि हम सिर्फ पूरी फूड इंडस्ट्री में हम अकेले हैं, या पूरी भारत की पूरी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग अकेले हैं जिनको कंपोजिशन का फायदा नहीं मिल रहा। आइसक्रीम में सर इतना निर्दयी तो कोई भी नहीं हो सकता सर। ये कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है सर? नहीं, 1 जुलाई से एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसको लागू होगी। तो ये जो 1 जुलाई से होगा उसके बाद में इसका फायदा मिलेगा, 1 जुलाई के पहले नहीं मिलेगा। दूसरा ऐसा है कि वो 1 जुलाई तक लेट इसलिए कि वो पूरी वेबसाइट प्लेटफॉर्म पे वो पूरा करने के लिए कुछ समय लगेगा, इसलिए उसको रखा हुआ है। दूसरी बात जो आपने कही है कि जीएसटी के बारे में, आइसक्रीम के ऊपर जो 1.5 करोड़ के टर्नओवर में जी कंपोजिशन, हाँ, तो ये कैसा, हाँ, तो ये मुझे लगता है एक बार आप थोड़ा सा सभी राज्यों के जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं, तो आप सबको एक बार ये बताइए कि हमको उसके साथ इक्वेट करना बराबर नहीं होगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें कुछ वो लोग सब बोलेंगे तो काउंसिल में निर्णय हो सकता है, क्योंकि केवल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो नहीं करते, सब लोग बैठकर उसमें निर्णय होते हैं। सर ये काम में सर, अगर मैं हमारे यूपी की भाषा में बोलूं तो हमारे कुछ लोगों की चप्पलें घिस गई। हमने पंजाब से, हमने बिहार से, महाराष्ट्र से, सब जगह से ये पिछले 4 साल से हम कर चुके हैं। अब आप जैसा कोई अगर हमारा हाथ पकड़ ले तो सर शायद काम हो जाए, वरना हमें तो लगता है कि हम उम्मीद सारी जा चुकी है और लोग परेशान हैं। कंपोजिशन वाली चीज सर छोटी बहुत 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 दुविधा में। थोड़ा मैं देखूंगा मेरे से, पर अभी मैं भी कोई आपको एकदम बता नहीं पाऊंगा, पर मैं एक बार इसके लिए जरूर बातचीत करूंगा। जी हमारे चित्ले साहब आपका एक पॉइंट था घी को लेके, कैन यू प्लीज टॉक ऑन दिस पॉइंट? अगर आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर एक 15 सेकंड में अगर बोल दें। श्रीपद चित्ले जी। बटर और घी का टैक्स 12% जीएसटी हो गया। उसके पहले वैट में 5% था, वो बदलाव आना चाहिए 5% पे, तो सभी लोगों को, क्योंकि अभी बटर और घी लोग आदमी जो काम करता है राजस्थान या इधर का वो ही खाते हैं, और हैफाई आदमी बटर नहीं खाता है। जी। और एक पॉइंट, इंडियन स्वीट्स को प्रिजर्वेटिव अलाउड नहीं है, उसके वजह से बहुत सारे स्वीट्स एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ 3 या 4 दिन रहता है, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव अलाउड करना चाहिए। सर हो क्या है कि वर्ल्ड में अलाउ है, अलाउ है, वर्ल्ड में अलाउ है, सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स को अलाउड नहीं है। सर आप मजे की बात देखिए, हमारा डायरेक्ट जो चैलेंज है वो है चॉकलेट इंडस्ट्री के साथ। चॉकलेट के अंदर आपने देखा होगा बच्चों को जेम्स खाते हुए, जेम्स कोई सा भी कलर, वो जेम नीले, पीले, हरे, हर तरह के, बट मिठाई में हम यूज नहीं कर सकते जेम्स को। मैं इसमें बातचीत करूँ। जी आवाज जी गलती से हो गई। तो सर हमें चॉकलेट, ये आपकी जो बातें इसके जी अच्छा, चॉकलेट अलग है, मिठाई अलग है सर। कलर्स, जो फूड कलर्स है ना, फूड कलर्स वो आप जेम्स में अलाउ कर रहे हैं, आप कन्फेक्शनरी में अलाउ कर रहे हैं, बट वही कलर अगर हमने लड्डू में डाल दिया तो हमारे लिए वो अलाउड नहीं है। या वही कलर आपने अगर बेवरेजेस में यूज कर रहे हैं, आप फैंटा में यूज कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं? ये कौन से मिनिस्ट्री के है सर? सर ये एफएसएसएआई में आता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई करके एक डिपार्टमेंट होता है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में। अच्छा, एक बार आप मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ, दीजिए। जी सर, ये अपनी स्वदेशी है सर। मिठाई के लिए तो हमें दुनिया में हमारा नाम होना चाहिए और लोगों को पहचान बननी चाहिए। अब मैं हमारे बहुत लीडिंग मिठाई मैन्युफैक्चरर हैं हैदराबाद से, आलमंड हाउस, आपने नाम सुना होगा अगर आप हैदराबाद गए हो और वहाँ की मिठाइयाँ कभी ट्राई की हो। आलमंड हाउस अपने आप में, चैतन्य इज अ वेरी यंग पर्सन, ही इज अ
MBA एंड बहुत फ्यूचरिस्टिक पर्सन है, आप देखेंगे उसको तो मतलब अब वो मिठाई वाली रूप बदल चुका है। तो आई विल रिक्वेस्ट चैतन्य के कुछ अगर मिठाई से रिलेटेड कुछ इशू हो तो प्लीज आप रखिए। वैसे तो हमने लिख के दिया हुआ है सबको, लेकिन एक बार आप ओवर टू यू चैतन्य। Thank you, Firoz. Thank you, Honorable Minister नितिन गडकरी जी। माफ कीजिए, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, तो मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। बोलिए। आपका thank you for taking the time to hear out some of our concerns, and your message of positivity and trying to overcome this together is really encouraging. And in that same spirit, I wanted to bring your attention to a couple of points that are posing to be concerns for our industry, and we seek your guidance to overcome them. Primarily, right now our focus is to reoperationalize, to build up production and come back to full force. I represent the part of the federation which is, the typical mithai wala. We are at the crossroads of retail and manufacturing and food processing. Primarily, the challenge right now is to bring people back. Our workforces are specially skilled migrant workers who have gone. We need to find a way to safely bring them back. And once they are arrived here, our problem is that we have a bottleneck where we have to quarantine them for 14 days because this is a food production environment, and we cannot even take the smallest risk of bringing somebody who is infected into our facilities. Now, this takes 14 days. If the ministry can create some window where MSME food manufacturers can get subsidized testing for the workers who are returning from their villages, it will shorten that bottleneck from 14 days to 3 days so that we can quickly rescale and reoperationalize. Secondly, when so many migrant workers are coming back, it's inevitable that, at some level, somewhere, somebody will bring the infection. But there's a lot of stigma and taboo surrounding the matter, especially for the food industry. If the ministry can create some guidelines for the press to tackle this without causing long-term damage to these brands, we have very strong SOPs in place. We have prevention, detection, and immunity measures for our workforces. But you still cannot avoid it 100%. And the way the media will deal with it may cause long-term irreparable damages to the brand, whereas the actual damage is very little in terms of the virus. Moving on to my next point, when I told some of my friends that I have this honor and opportunity to present some points to you, a lot of them have written into me to say that NBFCs are not extending the ECLGS benefits. We've written to champions@gov.in, we have written to NCGTC, but the replies we are getting are that it's been forwarded to the bank or it's been forwarded to the NBFC, but the representatives at the bank at the field level still don't have much idea. If there's some way you can hasten that process, many people are struggling to, see visibility on how they will get past the next month. And finally, the biggest setback for our industry, which operates retail, is the loss incurred due to the lockdown and the coming months of suppressed business in terms of negotiations with landlords and retail real estate owners. The government of UK has released a code of conduct, a set of guiding principles for landlords and tenants to navigate the issue between themselves and not have to resort to going to the courts to resolve their disputes. If your ministry or our government can also create a similar guiding set of principles for us to internally negotiate and move ahead past the crisis,
in terms of equitable solutions, it would be much appreciated. Thank you once again. I will look into it, but my suggestion is for state government is responsible for making rules, regulation, and giving concessions. So for migrant labor, whatever your proposals are there, you need to talk with a state government, and the state government is the appropriate authority now to taking the decision for all these things. Regarding your other issue, NBFC and other issue, I will look into it. I will try to resolve that issue. I will request you one thing. If you can give me an independent representation, you kindly divide it into two parts. The problems related with the state government and problem related with the central governments. In the government, problem related with the finance ministry, then problem related with the MSME ministry. Make it in a different paper. Then it can be more easy for us to implement the things. Somewhere if you have a problem related with health ministry, then prepare for that. Now that regarding this additives in the particular sweets, I don't know, but you give me the letter. I will, if the world, you give the case in a way that whole world is giving permission for that. Preservatives in sweets, the whole world is giving permission. Why not India? Prepare it in a proper way and give it to me. I will talk with the minister. Thank you. Thank you so much, sir. आपने बहुत अच्छा हमें समय दिया है. बहुत से पॉइंट्स हैं. दिल तो नहीं भरा आपसे बात करते हुए, लेकिन मुझे मालूम है कि आपको आगे भी आपका बहुत टाइडी शेड्यूल है. मैं बस 1 मिनट और लूंगा. हमारे सेक्रेटरी साहब आपको वोट ऑफ थैंक्स दे दें, फिर आप मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा. ओवर टू यू विक्रम जी, वेरी क्विकली. आप अपना समय ज्यादा ना लें, बहुत क्विकली सर को आगे भी ज्वाइन करना है एक और कॉल को. तो प्लीज विक्रम जी, ओवर टू यू. विक्रम अग्रवाल जी, सेक्रेटरी, फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स. Nitin Gadkari ji for taking his time and being with us in this webinar, and also to Shri Dikshit ji for arranging all the sir, with your words, I believe the fear of negativity and the positivity that you expect from the federation, we will assure you that we will do our best to create the positivity in the entire industry and bring back the self-confidence in the entire workforce. Also, your points, sir, towards adopting the living as the coronavirus is going to be for a long period of time. And regarding to your MSME and MOFPI integration, we really appreciate the efforts and rating the industries on this basis. Thank you, sir. And the depreciation increase also is one of the points. Sir, I will also like to thank our panelists, our all the dignitaries who have attended it and presented their points with the focusing the industries, and really see that our dynamic minister is helping us solving the issues. And as आपकी जो डायनामिक प्रैक्टिकल अप्रोच है, द फास्ट ट्रैक अप्रोच जो आपने अपनाई है, हमें पूरी उम्मीद है सर कि आप हमें उसका पूरा सहयोग देंगे. बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार. गडकरी साहब, बहुत बहुत नमस्कार एक बार मेरी तरफ से भी. और मुझे उम्मीद है कि हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे. आपके ऑफिस के हेल्प से